नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications. This is a pre-market report video for 3rd December 2025, that is for Wednesday. And in this video, we are going to cover the FN analysis, post-market analysis, chart review, top gainers, losses, technical view and outlook for Wednesday. And we are also going to cover the pre-market levels and review. So needless to say, we are going to cover everything: Nifty, Bank Nifty, Sensex, Midcap, India, VIX, USD, crude, gold, and silver, along with the global and local cues as well. So let us start from our market overview for the last trading day. What happened on 2nd December for Nifty expiry? तो हम लोग इधर देखेगा तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब में अच्छा खासा टूटा. तो हमें पता था, एक दिन पहले ही पता था कि एफएनओ डाटा के मुताबिक डाटा नेगेटिव बना था, तो मार्केट नीचे आना ही था. तो मार्केट खुला, गैप डाउन. उसके बाद मैंने आप लोगों का क्लियरली वॉइस मैसेज डाला था. तो ये डाउन मूव को चेंज नहीं करना, एक रिट्रेसमेंट इंतजार करना, उसके बाद लेवल टू लेवल खेलना. अगर किसी ने वो मेरा बात सुना और मेरा लेवल के नीचे शॉर्ट किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा. चलिए हम लोग चार्ट में जाके हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं. Yeah, this is a Nifty chart. I'm using a 15-minute time frame. So, friends, I told you that today the down move will be capped and 26,000 will not be breaking. So it happened exactly in that way. So if you look at our market, Nifty was able to defend 26,000, and at the end we could see a retracement of around 60 points. And the average closing has given 26,032. And for tomorrow, what you need to consider is that keep your chart in 15 minutes and mark this level. This is coming 25, 2660. So the moment market cross above this level, that is 20 MA in 15 minutes time frame, it should reach up to 50 MA, and 200 MA is also in that level. It will come around 26,100. And if it is crossing further, then you will be able to see 130 followed by even 200 also is possible. So what's this level? So for fresh shorts, consider only below 26,000. And let us also take a quick look at our Bank Nifty. Bank Nifty, I'm using a 5-minute chart. Bank Nifty, fresh shorts below 59,250 only. Okay, 59,250. So avoid shorts till the time Bank Nifty is holding above 59,250. If it is breaking below 59,250, then you will get target up to 59,000. And for longs, consider 350, 59,350. इसको ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना. तो आपको टारगेट 59,450, then followed by 500, then you'll get a target of 59,600. एक बार 59,600 के ऊपर निकल गया तो ये 56,000 तक भी जा सकते हैं. सेंसेक्स में हम लोग देखेगा तो सेंसेक्स was able to reach up to 50 M, but the average closing has given a lower end. For shorting tomorrow, if Sensex is going below 85,150, then consider shorts. You'll get first target 85,000 followed by 84,800. And for longs, consider only above 200 level. So एक बार 200 को ऊपर निकल गया, आपको 200 से 350, 400, then you will get up to 600. So अगर एक बार 600, 800 के ऊपर चला गया, 86,000 तक भी जा सकते हैं. For mid-cap Nifty, it is in a confused way, because mid-cap Nifty till the time, don't short it till the time it is holding above 13,960. अगर 13,960 टूट गया तब जाके शॉर्ट करना. लॉन्ग के लिए 14,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना. आपको टारगेट 14,100 तक मिल सकते हैं. तो इंडिया विक्स में हर दिन यही खेल का मैदान बोल सकते हैं. ऑपरेटर ऑप्शन प्रीमियम को खाने के लिए ये कितना अच्छी तरह इंडिया विक्स इस्तेमाल करते हैं. इन लोगों ने क्या किया, एक रेंज को सेल कर दिया, जैसे स्ट्रैडल राइटिंग करके पूरा एक रेंज में रख दिया, और 26,000 को टूटना नहीं दिया और मार्केट को ऊपर जाने भी नहीं दिया. फाइनली क्लोजिंग आया
2630 के पास है, तो पूरा प्रीमियम इन लोगों ने खा खा लिया। तो कल हो सकते है मार्केट खुलते ही एक बाउंस आ सकते हैं इंडिया विक्स में। तो खुलने के टाइम हम कोई भी ट्रेड नहीं करना, इनिशियल 5-10 मिनट्स के लिए कोई ट्रेड करना नहीं है, वो ठीक नहीं रहेगा। एक बार ये ऊपर आ गया उसके बाद स्लोली ये नीचे आना शुरू कर देगा, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। चलिए हम लोग अपने शीट में वापस चलते हैं। So USD INR every day I used to say, and finally USD INR almost reached 90 per dollar. So today it lost almost 40 पैसा, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो बोलने के लिए कुछ है नहीं है, जब तक ये हमारा INR में स्ट्रेंथ आते नहीं है तो बैंक निफ्टी मेटल सेक्टर सारे वीक रह सकते हैं। तो ये देखते रहना, अगर एक बार इसमें स्ट्रेंथ आ गया तो आप इस शॉर्ट में नहीं रहना, तो मार्केट में एक बाउंस आ सकते हैं। क्रूड में न्यूट्रल दिख रहे हैं, यूएस एंड वेनेजुएला के ऊपर कुछ टेंशन जारी है। अगर यूएस ने अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया तो क्रूड भाग सकते हैं, तो इसलिए क्रूड आज के लिए अवॉइड करना। गोल्ड में क्या है, गोल्ड इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड गिर गया था, लेकिन हमारा मार्केट में गिरने का नाम ही नहीं है, क्योंकि ये रुपये और वीक होते जा रहे हैं, तो इसलिए गोल्ड अभी भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। सिल्वर में 1.5% का गिरावट दिख रहे, ये तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट आफ्टर 10% रैली। और इम्पोर्टेंट इवेंट एंड डाटा हम लोग देखें तो आज जेरोम पॉल साहब का स्पीच है, इसके ऊपर पूरा मार्केट रिएक्शन देगा। अगर जेरोम पॉल साहब ने बोल दिया ओके वी आर गोइंग टू डू अ 0.25 basis point rate cut in December, then everything will rally. In all the global markets going to rally, including crypto, gold, world सब भागने वाला है। अगर मान लो इसने कुछ हॉकिश बोल दिया, ये सारे एसेट क्लास टूट जाएगा, तो देखते रहना। And for tomorrow, Wednesday, lot of datas are lined up. So for हमारा S&P ग्लोबल सर्विसेज पीएमए आएगा 10:30 बजे। अगर ये अच्छा आ गया तो हमारा मार्केट में ये रैली देखने को मिल सकते हैं, तो ये डाटा के ऊपर अब नजर रख लेना। जितना भी सर्विस सेक्टर है वो सब भाग सकते हैं कल। और यूएस में एडीपी नॉन फार्म पेरोल का डाटा आ जाना था, लेकिन पोस्टपोन हो गया कल के लिए। देन उनका भी S&P ग्लोबल सर्विस पीएमआई, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और क्रूड इन्वेंट्री वगैरह का डाटा कल के लिए। हम लोग एफएनओ डाटा के ऊपर नजर मारते हैं, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू रीड दिस डाटा। These are the market participants, retailers, DA, FA and pros. And FA and pros को हम लोग big players बोलते हैं और operator बोलते हैं। Monday means last to last trading day and Tuesday means last trading day. Total means what position carried by these market participants for Wednesday. So we'll start from index futures. अगर index future हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने और अच्छा खासा बाई कर लिया 17,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके चलते उसका 75,000 लॉन्ग पहुंच गया, और एफए ने 12,000 ओवर सेल कर दिया, उसका 1 लाख पहुंच गया शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर। ये अच्छा नहीं मार्केट के लिए, पर उसने हल्का सा बाइंग किया, तो ये डाटा मैं कहूँगा मिक्स टू बियरिश। इंडेक्स गोल्ड का डाटा है, इंडेक्स गोल्ड में रिटेलर ने फाइनली कुछ सेल कर दिया 21,000, उनका नेट लॉन्ग करते हुए पहुंच गया 17,000। तो डीए का हल्का सा 1,000 क्वांटिटी बाय है। एफए ने 13,000 कॉन्ट्रैक्ट ओवर सेल कर दिया, लेकिन अभी भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है उसका कॉल सेलिंग। प्रोस ने अच्छा काम किया, 34,000 बाई किया और नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया। दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश, मोर ओवर द वॉल्यूम्स आर लेस, सो इफ एनी पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट इज गेटिंग, वी कैन सी ए डायरेक्शनल रैली टुमारो। इंडेक्स पुट में रिटेलर ने और नेकेड पुट सेलिंग ऐड करते जा रहे, 4.5 लाख पहुंच गया। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों इतना ये लोग बुलिश होते जा रहे। एफए का ज़्यादा कारोबार नहीं, ओनली 135 कॉन्ट्रैक्ट। प्रोस का भी ज़्यादा नहीं, ओनली 24,160 कॉन्ट्रैक्ट ही है। दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बियरिश बट द वॉल्यूम्स आर लेस, तो इसका मतलब है मार्केट में मान लो कोई भी अगर पॉजिटिविटी आ गया, ये लोग भी कवर कर देगा, मार्केट में एक बड़ा रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खबर, एफए 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किए, उनका लॉन्ग पहुंच गया 13.71, दिस इज गुड न्यूज। प्रोस ऑल्सो परचेज 40,000, तो ये भी मार्केट के लिए अच्छा न्यूज है। प्रोस का पहुंच गया 4.65 lakhs, सो आई वुड से दिस डाटा स्टॉक फ्यूचर डाटा इज अल्ट्रा बुलिश।
स्टॉक होल्ड में फिर से बेकार खबर, रिटेलर और 59,000 लॉन्ग ऐड कर दिया, उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 4.56 लाख। और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है और शॉर्ट करते जा रहे हैं। क्रॉस ने बहुत बड़ा शॉर्टिंग पोजीशन बना लिया 3.44 लाख। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। चाहे इंडेक्स को ये लोग मैनेज कर लेगा कुछ कुछ स्टॉक से, लेकिन बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई देखने को बाकी है। स्टॉक पुट में भी यहाँ पे भी बेकार खबर, यहाँ पे भी रिटेलर अल्ट्रा बुलिश जा रहे हैं, उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 3.75 लाख। यहाँ पे भी प्रोस अल्ट्रा बेयरिश है स्टॉक पुट में भी। तो बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई हम लोगों को देखने को मिल सकती है, तो एक देखते रहना, चाहे इंडेक्स को मैनेज कर लेगा। तो इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, retailers are mixed to bullish in index options and stock options. FA and pros mixed to bearish in both index option and stock options. लेकिन देखने वाला बात है, ज़्यादातर पोजीशंस आज निफ्टी के एक्सपायरी के चलते हुए बंद हो गया और लाइट है। अभी इन लोगों ने इतना पोजीशंस बनाए नहीं है। ये जो नेट पोजीशंस है, नया कोई पोजीशन नहीं है जो बेचा हुआ है। इन लोगों ने जो कवर करने के बाद बेचा हुआ पोजीशन इधर दिख रहे हैं। तो अगर मान लो मार्केट में कुछ भी पॉजिटिविटी आ गया, एक डायरेक्शन मूव आ सकते हैं, तो ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना। कैश मार्केट में DI 4,646 करोड़ बाई किया, FA ने 3,642 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी सेलिंग है मुझे लग रहा है प्रोस और हमारा रिटेलर ने किया होगा। टॉप गेनर्स में हम लोग देखेगा तो बहुत सारे स्टॉक्स है। टॉप गेनर में एशियन पेंट बह रहा है। तो कल के लिए क्या करना, अगर एशियन पेंट में मान लो और कोई उछाल आते हैं 1-2% का, तो आप इसमें शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जितना भी स्टॉक्स है यहाँ पे दिख रहे हैं, आप TCS वगैरह में मान लो अगर फेड का जेरोम पाउल साहब का स्पीच अगर पॉजिटिव आते हैं, IT स्टॉक्स में आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी लगा देना। अगर ये न्यूज नेगेटिव आया तो सेल ऑन राइस के मामले में देख लेना। ग्रासी नेक्स्ट हो गई, मान लो ग्रासी में मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, तो देख के आप शॉर्ट करना। और जहाँ जितना वॉल्यूम स्टॉक से वॉल्यूम जितना भी बड़ा बड़ा वॉल्यूम से अगर उनमें डिप आते हैं, आप उसको बाइंग के नजर में कंसिडर कर सकते हैं। टॉप लॉसर में दोस्तों कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बोल दिया, जितना भी बैंकिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर में आप बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रुपये में वीकनेस जारी था। तो वही हुआ, अगर किसी ने आज बैंकिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर वगैरह में शॉर्ट किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट, जितना इंडेक्स से प्रॉफिट मिला उससे डबल प्रॉफिट मिल गया होगा। तो कल के लिए क्या आप देखना है, कल के लिए जो हेवी वॉल्यूम्स देख लेना, जैसे ITC हो गया, इवन अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर। अगर मैक्स हेल्थ और अपोलो में अगर मान लो कोई भी उछाल आते हैं, आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। IT स्टॉक से छोड़ देना, इवन बैंकिंग को भी आगे छोड़ देना। बाकी आप वॉल्यूम के हिसाब से आप देख के डिसीजन ले लेना। Let us quickly look at our technical view and outlook for Wednesday. So we will start from Nifty. Nifty was able to hold 26,000. If it is breaking below 26,000, then only a short. First target you will be getting 26,960, followed by 26,910. इन इसके बीच में बहुत सारे इंट्रीम सपोर्ट भी है, तो इतना डाउन मूव सीधे नहीं मिल सकते, रुक रुक के जा सकते हैं। तो चाहे तो ऑप्शन सेलर सेलिंग के लिए ये सोच सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 26,000, जब तक होल्ड है शॉर्ट नहीं करना। लॉन्ग के लिए 2650 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 2600 फॉलोड बाय 26,170। मेजर रेजिस्टेंस है 26,200 है। निफ्टी नो लॉन्ग्स पॉसिबल टिल द टाइम निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 20 EM, ये मेरा व्यू है। PCR अभी भी इसका ठीक दिख रहे हैं, ओवरसोल्ड में भी नहीं है, ओवरबॉट में भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी में जब तक 59,250 होल्ड है, इसमें शॉर्ट नहीं करना। अगर ये टूट गया तो आपको 59,000 इवन 58,900 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 59,350 के ऊपर ही लॉन्ग सोचना, आपको 500 टू 59,750 तक टारगेट मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 60,000। बैंक निफ्टी जब तक 59,350 के नीचे बेरिश नजरिए से देखना। PCR अभी भी इसका अच्छा है। सेंसेक्स में 85,150 के नीचे शॉर्ट करना, आपको 85,000 फॉलोड बाई 84,800 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 84,800 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आता रहेगा। सो फॉर लॉन्ग्स 85,200 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना, तो फर्स्ट टारगेट 400 फॉलोड बाई 600 तक मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस से 85,800, अगर एक बार 85,800 के ऊपर चलना शुरू किया तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं। सो जब तक सेंसेक्स 85,500 के नीचे, तो इसका बेयरिश नजरिए से आप
देख लेना। पीसीआर है, इसका और सोल टेरिटरी में, तो इसमें एक बाउंस आना बाकी है। मिड कैप में 13,960 के नीचे शॉर्ट खोजना, 900 फॉलोड बाय 13,850 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 14,000 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, 1410 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। सो जब तक मिड कैप 14,000 के नीचे, ये बेरिश नजरिए से देखना। पीसीआर अभी भी इसका ठीक है। तो कल के लिए मेरा व्यू अभी भी क्या है, रुपये में और वीकनेस जारी है और बॉन्ड डील्स वाला और ऊपर जा रहे हैं। तो जितना भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पोजीशन और प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रहे, बैंकिंग सेक्टर और जितना भी जो रेट सेंसिटिव सेक्टर में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो अगर मान लो अगर रुपये में स्ट्रेंथ आया तो ये सारे सेक्टर में एक उछाल देखने को मिल सकते हैं। मेरा व्यू है, द ओनली पॉजिटिव थिंग आई टुडे हैव सीन इज दैट मार्केट वाज एबल टू, निफ्टी वाज एबल टू होल्ड 26,000. So strategy go with the market trend. So I am expecting a directional trending move after initial volatility. So wait for that. Either side, whichever side it breaks, go for a directional move. Okay, let us also take a quick look at the global markets. And today Jerome Powell's speeches are based on that. The market reaction you can see. Currently, US markets are mild positive only. GIFT Nifty is indicating flat. So we may have to see what is the reaction on the later half in US market. और कल हम सुबह हमारा मार्केट खुलने से पहले यूएस फीचर्स कैसे रिएक्शन देते, उसी के मुताबिक हमारा मार्केट भी खुलेगा. So friends, if you like this content on my channel, please subscribe to my channel and like my video. I would also appreciate all your comments. Thank you.